Hi friends, Namaste, lovely friends. My name is Sushil Sharma and I have an experience of around 24 years in the field of HR, administration, IR. Today I come with a topic which is very interesting for HR people and very knowledgeable and useful for the HR people. I have tried to give some sutra of HR, that is the 10 commandments of HR effectiveness. This will bring you very good view of HR, and this 10 commandment will help you to help yourself and the company to grow. It will help to make the company a consistent growth path, and I believe that this 10 commandment will be very useful for you for whole lifetime, as this commandment clearly depict the HR activities, functions and values. In India, we are in a arena of lot of confusion regarding HR activities, functions and its role. This will help us, HR people, and understanding HR values, sutra and the commandment. You remember this 10 commandment means you know all of the HR. You take all this 10 commandment and put on your dashboard, or you can put on your notice sort of thing, softboards. You will definitely gain a lot of things from this 10 commandments. Please remember this 10 commandment, and I am very definite this is going to help you and your company to grow, and you also will grow. Your interest will be also be served as a HR person. Now we will be discussing all these 10 commandments in form of slides. Slides will be in English and then I will explain in Hindi. We will take one by one all the slides, and we will see the slides. First slide, the first commandment. Engage literate manpower carefully, adjusting for request, trends and capacity, because cheap illiterate manpower is no cheaper, it is a liability which could be jeopardizing high-tech work environment. This is the part of recruitment, how to recruit the people. This is the principle, this is the sutra, first sutra. Only try to appoint or select the यूज़फुल मैन पावर विच इज़ लिटरेट एंड हैव अ कैपेसिटी, मतलब जो जिसके लायक है उसी को अपॉइंट करना, कोई भी उसके बदले में दूसरे तरीके का जो ट्रेंड और कैपेसिटी हो उसको अपॉइंट नहीं करना चाहिए, नहीं तो कंपनी की एनवायरनमेंट मतलब काम करने का जो एनवायरनमेंट होता है उसमें डिस्टर्बेंस आएगा और प्रोडक्टिव लॉस होगा। प्रोडक्टिविटी लॉस हो जाएगी, मतलब जो आदमी जिस काम के लिए रखा गया है वो काम ना करे और जिसकी ज़रूरत हो उसकी तरह का आदमी ना लाएं, तो आपको ये प्रोडक्टिव लॉस होगा। सेकंड स्लाइड इज सेकंड कमांडेंट, द राइट मैन हैज़ टू बी पुट ऑन द सुटेबली राइट जॉब। ये प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। प्लेसमेंट मतलब आपको सही आदमी को सही जगह पर रखना, ये एचआर का एक फर्स्ट प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वाइटल रोल है, वो हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसमें छोटी सी भी त्रुटि यानी गड़बड़ी होगी तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो काफ़ी लो हो जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएंगे, कन्फ्यूज़न बढ़ जाएगा और अल्टीमेटली कंपनी भी सफ़र करेगी और कुछ दिनों के बाद एचआर डिपार्टमेंट भी प्रॉब्लम में आ सकता है। थर्ड स्लाइड, थर्ड कमांडेंट। ये कमांडेंट अपने को
तीसरी बात जो एचआर में है वो कंपनसेशन की बात है। एन एम्प्लॉय इज़ नॉट टू बी पेड गुड वेजेस but has to be compensated properly not for the work done in 8 hours a day but for his mental and physical contribution to the profit and the growth of the organization। इसका मतलब है कि जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी गुड सैलरी इनफ नहीं होती है, या 8 घंटे में उसने काम किया वो नहीं, वो गुड सैलरी का नहीं। हम लोगों को ये भी डिसाइड करना पड़ेगा एचआर वालों को कि उसका ग्रोथ में और प्रॉफिट में कितना कंट्रीब्यूशन होता है, उस हिसाब से उसकी सैलरी का डिसीजन लेना चाहिए। दिस इज अ कंपनसेशन पार्ट ऑफ एचआर डिपार्टमेंट। फोर्थ स्लाइड, फोर्थ कमांडेंट। ये कमांडेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में और उसके एम्प्लॉयज़ की अथॉरिटी के बारे में बताता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड एनवायरनमेंट हैज़ टू बी सच दैट इट फैसिलिटेट्स the employee's identification as a part and parcel of organization and shall not dilute authority, initiative or responsibility, accountability besides expression of hidden talents। ये साफ बता रहा है कि आपने जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया है उसके अंदर एचआर की जिम्मेदारी है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय है या पोजीशन पे कोई एम्प्लॉय है उसकी अथॉरिटी डाइल्यूट ना हो और उसकी इनिशिएटिव और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में और अकाउंटेबिलिटी में हिंड्रेंस ना हो, जिसके वजह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कन्फ्यूज़न हो सकता है या जो आदमी एम्प्लॉय किया गया है जिस पर्पस के लिए वो भी डिफिट हो सकता है। इसका भी एचआर को ध्यान रखना है। ये फोर्थ कमांडेंट है। फिफ्थ स्लाइड, फिफ्थ कमांडेंट। There has to be excellent communication, especially regarding work to be performed, and that has been performed so as to make an employee feel in an organizational achievement and contribution inside him। फिफ्थ कमांडेंट कम्युनिकेशन के बारे में बता रहा है। एचआर का ये भी बहुत मेजर फंक्शन है। उसने बताया है कि एम्प्लॉयज़ को उसके काम के बारे में बहुत ज़रूरी है कि उसे अपने जॉब रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके बॉसेस, अथॉरिटी सबके बारे में पता हो। यह एचआर की जिम्मेदारी है। साथ में ये भी बताया है कि जैसे ही कोई एम्प्लॉई या एम्प्लॉय टीम अच्छा परफॉर्म करती है तो एचआर की जिम्मेदारी है उससे परफॉर्मेंस को, अचीवमेंट को अप्रिशिएट करना, रिकॉग्नाइज करना, रिवॉर्ड प्रोवाइड करना। ये भी एचआर को ध्यान रखना चाहिए। ये फिफ्थ कमांडेंट कह रहा है। सिक्स्थ स्लाइड, सिक्स्थ कमांडेंट। टेक्निकल स्किल अपग्रेडेशन मस्ट बी एंश्योर थ्रू रेगुलर ऑन जॉब एंड ऑफ जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू प्रिवेंट एब्सोलेंस एंड फैसिलिटेट जॉब एनरिचमेंट। ये सिक्स कमांडेंट भी एचआर का एक फंक्शन है जो वाइटल है आजकल की टेक्निकल चेंजेस में और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कह रहा है कि टेक्निकल स्किल को हमेशा अपग्रेड करते रहना चाहिए, ऑफ जॉब हो या ऑन जॉब हो, क्योंकि उनके स्किल कब मार्केट से बाहर हो जाएंगे और वो एम्प्लॉय आपके लिए लायबिलिटी बन सकता है। तो ये अपने को एचआर डिपार्टमेंट को हमेशा फैसिलिटेट करके ट्रेनिंग कराते रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ईच एम्प्लॉय का हर बार जॉब एनरिचमेंट हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ कि आपका पास सुपरवाइज़र है, उसका रोल है कि उसको प्रोडक्शन के टारगेट्स को जो दिए गए हैं उसको एग्जीक्यूशन कराना, फ्लोर पे मैन पावर को हैंडल करना। तो आप जॉब एनरिचमेंट के लिए उसको ऐसा बोल सकते हैं कि आप MIS भी बनाना शुरू करें और इससे उसको एक जिम्मेदारी भी फील हो सकती है। इस तरह से आप जॉब एनरिचमेंट कर सकते हैं। सेवन स्लाइड, सेवन कमांडेंट। ये करियर के बारे में बता रहा है। करियर प्लानिंग ऑफ एम्प्लॉय हैज़ टू बी एक्टिवली असिस्टेड टू शो दैम देयर पॉसिबल असेंट। आपको एचआर डिपार्टमेंट को करियर प्लानिंग करना चाहिए एम्प्लॉय का, जिससे कि एक्टिवली मतलब आपको बार बार देखते रहना पड़े असेसमेंट में, जिससे कि उसको असेंड मतलब आगे प्रोग्रेस, प्रमोशंस के बारे में दिखाई पड़े। ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है जिससे कि आप एम्प्लॉय, अच्छे एम्प्लॉयज़, स्किल्ड एम्प्लॉय, नॉलेजेबल एम्प्लॉयज़ को
आप रिटेन कर सकते हैं। 8th slide, 8th commandment. Inculcate a culture of learning to create a learning organization so as to not only be able to compete profitability but also to grow. इसका मतलब है कि आपको ऐसा कल्चर डेवलप करना चाहिए, HR डिपार्टमेंट को ऐसा कल्चर डेवलपमेंट करना चाहिए कि लोग लर्निंग करें और उनको लर्निंग के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए, जिससे कि वो compete की profit means they not compete the profitability, also they can grow in the organization and get a next level of promotions and all these things. The profitability both side, company as well as employee. This is the 8th commandment. 9th slide, 9th commandment. Companies are successful at returning their best employee when the people feel that they have a great opportunity. रिटेंशन की बात कर रहा है 9th कमांडेंट। आपको कैसे रिटेन करना है? आपके एम्प्लॉई जो आपने अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज़ लिए हैं, नॉलेजेबल एम्प्लॉय लिए हैं, एक्सपीरियंस वाले लिए हैं, स्किल वाले एम्प्लॉय लिए हैं, तभी आपके साथ टिकेंगे जब उनको सामने अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई देंगी। 10th slide, 10th commandment. 10th commandment क्या बोल रहा है? कंपनी नीड टू फोकस ऑन क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट दैट डेवलप एंड नर्चर टैलेंट बाय प्रोवाइडिंग द राइट अपॉर्चुनिटी। ये बोल रहा है कंपनीज़ को और HR को ऐसा एनवायरनमेंट बनाना चाहिए जिससे कि का जो एम्प्लॉय है उसके टैलेंट को हम डेवलप भी कर सकें और संजोग के भी रख सके, जिससे कि आप उसको इस तरह की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए जिससे कि वो कंपनी के लिए बेनिफिशियल होता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई PPT. Like and subscribe our channel Human Capital and click on bell icon to get our latest video. Thank you very much.